Good morning, students. Welcome back to your math class. As we have completed the chapter Introduction to Graph, today I will take very important questions of this chapter in which situation is given but table is not given. Means the data is not given in a tabular form. So we will learn about how to represent the data in the tabular form by the given situation and to draw the line graph of the above data. Okay, so I am taking example number 5 in which situation is given but table is not given. First of all, we will make the table for from the given situation. Here what is given, area of a square and its side. We have to plot the graph between area of square and its side. As you know, what is the relation between area and side? Area is equal to side multiply side. So first of all, we will make the table by taking any unit of side. Means side we will take 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter or so on. ठीक है. For plotting this type of graph, we will make the table by taking at least 3 or 4 entries. Okay, here I am going to make the table as I am going to take the side 1 and area will become side multiply side 1 multiply 1. Okay, if we will take the side 2, area will become 4, side 3, area will become 9, side 4, area will become 16, 5 with 25 and 6 with 36. I have taken 6 entries. You can take at least 4 entries. Okay, so now in x-axis you will take 1 2 3 4 5 6, but in y-axis it will up to 36. So we will take the difference of 5 5 or 10 10 in y-axis, and we will write the scale also in x-axis as well as in y-axis. Okay, what is the scale for x-axis and y-axis? One big division in x-axis is equal to 1 unit, and in y-axis one big division is equal to 5 square unit. Okay, so we will write the points. क्या पॉइंट्स बन जाएंगे? फर्स्टली वी विल राइट द साइड एंड देन एरिया 1 1 2 4 2 and 4, and then third point is 3, and if side is 3 then area is 9. Okay, third point is 3 9, and side by side we will plot this. फर्स्ट पॉइंट हमने प्लॉट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, इनके नेम राइट कर दिए. लाइक मैंने लिखा C2 C3 C4. यू विल राइट द कोऑर्डिनेट ऑल्सो. 416 एंड देन 525. ओके, 525 हो गया, एंड देन 636. लास्ट पॉइंट इज 636. 6 पे क्या आ जाएगा? 36. 36 है ना बच्चे, तो 2 स्मॉल स्क्वायर 1 के इक्वल होएगा. 35 के बाद आप 2 स्मॉल स्क्वायर लोगे. ठीक है, नाउ ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स जैसे कि आपने पहले बनाया है. बस फर्क क्या है, यहाँ हमें टेबल नहीं गिवन, पहले हमने टेबल बनानी है और फिर ग्राफ प्लॉट करना है जैसे कि हम पहले प्लॉट करते हैं. ठीक है, clear this. We will join all these points and we will get a line graph. Okay, clear this. You can take the scale according to your requirement. Okay, now we will take example 8. In example 8 we have to plot the graph of distance, time and distance graph. Arun can drive a car continuously at the speed of 40 km per hour, and we have to plot the time distance graph. Means to convert the speed into time and distance. टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया 40 किलोमीटर, और टाइम क्या हो गया 1 आवर. तो 1 आवर में वो 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है. तो हम पहले इसकी टेबल बना लेंगे. 1 आवर में कितने किलोमीटर है 40, तो 2 आवर में कितने हो जाएंगे? 2 आवर में, 3 आवर में, 4 आवर में, 5 आवर में. हम 6-7 आवर्स तक ले लेंगे. मैं 7 आवर्स तक ले रही हूँ. एटलीस्ट आप 4 आवर्स तक तो ज़रूर ही लोगे, यानी 4 एंट्रीज तो आपने कम से कम लेनी है. ओके, 1 आवर में 40 किलोमीटर है. क्या रिलेशन होता है डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो 40 को आप 2 से करोगे 80, 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया 120, 40 को 4 से किया 160, 5 से किया 200, 6 से किया 240 एंड 7 से किया हमने मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 280. ये हमारी टेबल बन गई. अब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. एक्स एक्सिस में हम क्या ले लेंगे? टाइम, और वाई एक्सिस में हम क्या ले लेंगे? डिस्टेंस. 40 40 का डिफरेंस ले लीजिए.
बड़ा इजीली आपका प्लॉट हो जाएगा। 40, 80, 120, 160 और इक्वल गैप है, किंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट क्या आ गया 140, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आ गया आपके पास 280, थर्ड पॉइंट क्या आ गया 3 180 और फोर्थ पॉइंट क्या आ गया 4 160, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या आ गया 5 and 200, क्लियर। एंड 6 and 240 एंड नेक्स्ट इज 7 and 280, ओके। सभी पॉइंट्स आ गए। अब इन सब पॉइंट्स को आप क्या करोगे ज्वाइन कर लोगे तो आपके पास लाइन ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ज्वाइनिंग A to B, B to C एंड देन C to D एंड सो ऑन, सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे लाइक दैट, क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास ग्राफ मिल गया। अब हमें इसी ग्राफ की यूज़ इट, यहाँ लिखा हुआ ना बेटा क्वेश्चन में यूज़ इट टू फाइंड, अब इन दोनों क्वेश्चंस के हमने आंसर देने हैं बट ग्राफ का यूज़ करके, ठीक है। फर्स्ट क्या है टाइम टेकन बाय अर्जुन टू कवर 160 किलोमीटर। अब देखो बेटा 160 किलोमीटर कहाँ है, ये है ना 160 किलोमीटर। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करो जो हमारे ग्राफ वाली लाइन को जहाँ कहीं भी कट करे और उसको नीचे से ज्वाइन करके देखो कितना टाइम है 4 आवर्स ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे पास 4 आवर्स, ठीक है। क्लियर दिस। अब हमें क्या लेना है डिस्टेंस कवर्ड बाय अर्जुन 2.5 आवर। अब 2.5 आवर कहाँ होंगे 2 और 3 के बिल्कुल बीच में, ठीक है। 2 और 3 के बिल्कुल बीच में हम यहाँ लाइन लगाएंगे 2 और 3 के बिल्कुल बीच में, ठीक है। 5 के आपके 10 बॉक्स होते हैं ना तो 5 बॉक्स पे आ जाएगा। तो आप सीधी लाइन बिल्कुल स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, जहाँ भी इस लाइन ग्राफ को टच करेगा फिर उसको किससे मिला दोगे आप वाई एक्सिस से, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन सीधी लाइन ले जाओगे। वाई एक्सिस को जहाँ भी ये ज्वाइन करेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। अब 680 और 120 के बिल्कुल बीच में आ रहा है तो कितना हो गया 100 हो गया ना। 40 का गैप है और 5 किसके इक्वल हो गए 100 के ना। 10 के लिए 40 का गैप है और 5 के लिए कितना हो गया 100, तो 100 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। तो इन दिस वे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए यूजिंग दिस ग्राफ तो हम ये करेंगे और स्केल भी ज़रूर लिखनी है। और बेटे एक चीज़ और आप ध्यान देना कि आपने एक चीज़ बच्चे आपने और ध्यान देनी है, आप नोटबुक्स पूरी कंप्लीट करोगे, ग्राफ पेपर में ही रहने देना, इसको पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप मुझे सबमिट करोगे इसकी इमेजेस एक ही बार में, पूरे चैप्टर की इमेजेस एक ही बार में सबमिट करना। ये नहीं कि आधी इमेजेस आप अपलोड कर देते हो आधी रह जाती हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और नीट एंड क्लीन पेंसिल से ग्राफ बनाना है और आपको स्केल भी राइट करनी है। क्लियर दिस, हैव अ नाइस डे। ठीक है बच्चे, समझ आ गई ना।